معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کا دعویٰ، شمالی کوریا نے سرحد پر واقع رابطوں کا مشترکہ دفتر تباہ کر دیا۔ یمن پر جارح سعودی اتحاد کی بمباری میں 8 یمنی شہید۔ اسرائیل دوستی پر مبنی اماراتی اقدام فلسطین کی کمر میں خنجر کھونپنے کے مترادف ہے۔ حماس۔ غزہ پر اسرائیل کا ڈرون حملہ۔ دہشت گردوں پر شامی فضائیہ کا حملہ، امریکی اور ترکی کے خلاف شامی شہریوں کا مظاہرہ۔ افغانستان میں دھماکے، 16 سیکورٹی اہلکار اور 12 طالبان ہلاک۔ چین نے دی پھر کھلی دھمکی، ہندوستان کے کچھ لوگ ویتنام کو بھڑکانا چاہتے ہیں، ہم سبق سکھا دیں گے۔ کویت میں کورونا کیسوں کی اپڈیٹ لسٹ، 527 نئے کیس اور 5 اموات کی تصدیق۔ کوئی بھی طاقت ہند نیپال رشتہ نہیں توڑ سکتی، راجناتھ سنگھ۔ چین و نیپال سے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل، صرف پاکستان سے دشمنی۔ لداخ میں واقع وادی گلوان میں انڈین اور چینی فوج کی سرحدی جھڑپ میں افسر سمیت 3 انڈین فوجی ہلاک۔ بھارت چین کے درمیان ہوئی لڑائی میں مرنے والوں میں تلنگانہ کے کرنل سنتوش شامل۔ چین سرحد پر جھڑپ، راجناتھ نے میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ وادی گلوان میں حالات پر قابو پانے کے لیے ہند چین فوجی افسروں کی ملاقات۔ کورونا وبا نے گجرات ماڈل کی اصلیت ثابت کر دی، راہل گاندھی۔ اتر پردیش حکومت کا سیکریٹریٹ بھی بدعنوانی کا اڈا، پرینکا گاندھی۔ بھارت پورے خطے کے امن و امان کو داؤ پر لگا رہا ہے، شاہ محمود قریشی۔ پولیس نے ڈی ایم سی کے سربراہ کو غداری کے مقدمے میں تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے نوٹس بھیج دیا۔ سشانت سنگھ کی موت کی خبر سن کر ان کی بھابھی بھی چل بسی۔ ضلع کڑپا میں 17 نئے کنٹونمنٹ زون کی تشکیل، ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن۔ جے سی دیواکر ریڈی کی ملکیت فروخت کرنے پر ضلع اننت پور کے عوام کی 20 برسوں تک ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں۔ کڑپا پولیس کا کارنامہ، 24 گھنٹوں کے اندر چور کو گرفتار کر کے چوری کا مال برآمد کر لیا، ڈی ایس پی کڑپا سوریا نارائن۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کا دعویٰ، شمالی کوریا نے سرحد پر واقع رابطوں کا مشترکہ دفتر تباہ کر دیا۔ جنوبی کوریا میں حکام کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے سرحدی گاؤں کائسنگ میں واقع رابطے کے لیے ایک مشترکہ دفتر کو دھماکے سے اڑا دیا ہے۔ یمن پر جارح سعودی اتحاد کی بمباری میں 8 یمنی شہید۔ جارح سعودی عرب کے لڑاکو طیاروں نے شمالی یمن کے صوبے سعدہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کرتے ہوئے ایک گاڑی کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد کے لڑاکو طیاروں کے حملے میں 8 یمنی شہری شہید ہو گئے۔ اسرائیل دوستی پر مبنی اماراتی اقدام فلسطین کی کمر میں خنجر کھونپنے کے مترادف ہے۔ حماس۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے غاصب صہیونی رژیم اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کیے جانے کے اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ حماس کے ترجمان نے امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں تعینات اماراتی سفیر کی جانب سے صہیونی اخبار میں منتشر کیے گئے اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات استوار کیے جانے پر مبنی کالم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام متحدہ عرب امارات کی جانب سے فلسطین کی پشت میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہے۔ غزہ پر اسرائیل کا ڈرون حملہ۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے پیر کی شب
ड्रोन और तोपों के गोलों से गजा पट्टी पर हमला किया। फारिस खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीनी जराये का कहना है कि कुद्स की गासिब और जाहिर से होनी हुकूमत ने पीर की शब ड्रोन से गजा पट्टी के इलाके अल-मतार पर बमबारी की। दहशतगर्दों पर शामी फिजाइये का हमला, अमेरिकी और तुर्की के खिलाफ शामी शहरियों का मुजाहरा। शामी फिजाइया के लड़ाकू तैयारों ने शुमाली सूबे इदलिब में दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी की है। रूसी खबर रसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शामी फिजाइया की बमबारी में इदलिब के जुनूब में वाक़ दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह हो गए। इस इलाके में हवासुद्दीन और अत-तुर्किस्तानी नामी दहशतगर्द गिरोह के ठिकाने वाक़े हैं। अफगानिस्तान में धमाके, 16 सिक्योरिटी एहलकार और 12 तालिबान हलाक। अफगानिस्तान के सूबे गजनी में एक फौजी चौकी और थानवी में होने वाले धमाकों में 16 सिक्योरिटी एहलकार और 12 तालिबान हलाक हो गए। गजनी काउंसिल के सदर नसीर अहमद फकीरी ने कहा कि इस सूबे के शहबाज खान के इलाके में एक फौजी चौकी में होने वाले बारूदी सिरिंज के धमाके में 7 फौजी हलाक और 8 जख्मी हो गए। अभी तक किसी भी गिरोह ने इस दहशतगर्दाना वाक़ये की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। चीन ने दी फिर खुली धमकी, हिंदुस्तान के कुछ लोग वियतनाम को भड़काना चाहते हैं, हम सबक सिखा देंगे। एक तरफ चीन हिंदुस्तान के साथ सरहदी तनाज़ुर पर बातचीत जारी रखे हुए है, वहीं दूसरी तरफ वो धमकी आमेज बयानात के साथ उस पर दबाव डालने की भी कोशिश कर रहा है। इस बार चीन ने हिंदुस्तान को माहिरीन और राय दहिंदगान को निशाना बनाते हुए कहा कि कुछ मुबैयिना हिंदुस्तानी माहिरीन चीन की तकसीम का ख्वाब देख रहे हैं। हम उन्हें वाज़ेह करना चाहते हैं कि चीन ऐसे लोगों को सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेगा। कुवैत में कोरोना केसों की अपडेट लिस्ट, 527 नए केस और 5 अमवात की तस्दीक। कुवैत वजारत सेहत ने गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस कोविड-19 के 527 नए वाक़यात की तस्दीक कर दी, जिससे केसों की मजमूई तादाद 36,958 हो गई है। अमवात के 5 नए केसों से कुल तादाद 294 हो गई है। मुतासिरा मरीजों के साथ राब्ते में रहने वालों की तादाद ये है: 264 कुवैती शहरी, 85 भारतीय शहरी, 38 मिस्री शहरी, 33 बांग्लादेशी शहरी और 117 दीगर कौमियत। वो रिहायशी इलाके जहां सबसे ज्यादा केस दर्ज हैं उनमें ये हैं: मभोला में 29, फरवानिया में 22, अल-फहाफिल में 21, सबाहुस सालिम में 20, मनकफ में 18 और सालमानिया में 16। कोई भी ताकत हिंद नेपाल रिश्ता नहीं तोड़ सकती, राजनाथ सिंह। नेपाल का इलाकाई दावा मुस्तरद करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पीर के दिन जोर देकर कहा कि लेपोलीक धारचुला सड़क हिंदुस्तान के इलाके में बढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत पड़ोसी मुल्क से बातचीत के जरिए गलतफहमी को दूर करने पर आमादा है। उन्होंने दोनों ममालिक के सदियों कदीम ताल्लुकात का हवाला दिया और कहा कि ये ताल्लुकात न सिर्फ समाजी, जोग्राफियाई, तारीखी और सकाफती हैं, बल्कि रूहानी भी हैं। चीन व नेपाल से बातचीत के जरिए मसाइल का हल सिर्फ पाकिस्तान से दुश्मनी बातचीत नहीं है, बीजेपी हुकूमत की खारिजा पॉलिसी। लद्दाख में वाक़े वादी गुलवान में इंडियन और चीनी फौज की सरहदी झड़प में अफसर समेत 3 इंडियन फौजी हलाक। इंडिया का कहना है कि चीनी फौज के साथ सरहदी झड़प में 3 इंडियन फौजी एहलकार हलाक हो गए हैं। चीन और इंडिया की मुतनाज़ सरहद पर किसी झड़प में हलाकत का कम से कम 45 बरस में यह पहला वाक़या है। भारत चीन के दरमियान हुई लड़ाई में मरने वालों में तेलंगाना के कर्नल संतोष शामिल। कल रात भारत और चीन के दरमियान हुई फायरिंग में 3 जवानों बशमूल 1 कर्नल की मौत वाक़ हुई, जिसमें तेलंगाना के सूर्यापेट के साकिन कर्नल संतोष भी शामिल है। मौत की खबर से फौज के जराये ने आज उनके अफराद खानदान को वाकिफ कराया। वाज़ेह रहे कि कर्नल संतोष
गुज़िश्ता 1.5 साल से बॉर्डर पर तैनात थे। शहीद होने वाले कर्नल संतोष के पसमानदगान में एहलिया संतोषी के अलावा 9 साला दुख्तर अबगनी और 4 साला फर्जन अनिरुद्ध शामिल है। शहीद होने की खबर से सूर्या पेट में गम की लहर दौड़ गई। चीन सरहद पर झड़प, राजनाथ ने मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया। हिंद चीन सरहद पर मशरकी लद्दाख इलाके में दोनों अफवाज के जवानों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प के पेश नजर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज यहां एक मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ मनोज मगनत नरोने के साथ सूरत हाल का जायजा लिया है। वादी गुलवान में हालात पर काबू पाने के लिए हिंद चीन फौजी अफसरों की मुलाकात। चीनी फौज के साथ सरहदी झड़प में 3 हिंदुस्तानी फौजी जवान बशमूल 1 फौजी अफसर हलाक हो गए हैं। फौज ने एक बयान में कहा है कि सूरत हाल बदलने के लिए फरीकैन के सीनियर फौजी अफसरान मौके पर मुलाकात कर रहे हैं। कोरोना वबा ने गुजरात मॉडल की असलियत साबित कर दी, राहुल गांधी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि कोविड-19 के सबसे ज्यादा अमवात की शरह ने गुजरात मॉडल की पोल खोल दी है। राहुल गांधी ने मंगल के रोज ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की हुकूमत वाले गुजरात और कांग्रेस और इत्तेहादी पार्टियों की हुकूमत वाली 6 रियासतों में कोरोना की वजह से होने वाली अमवात के आदाद व शुमार पेश करते हुए कहा कि उन 7 रियासतों में सबसे ज्यादा अमवात गुजरात में हुई हैं, जिससे पीएम मोदी के गुजरात मॉडल की अहलियत साबित होती है। उत्तर प्रदेश हुकूमत का सेक्रेटेरिएट भी बदअनवानी का अड्डा, प्रियंका गांधी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा, जो असातिज़ा की भर्ती घपले पर उत्तर प्रदेश हुकूमत पर मुसलसल हमला आवर हैं। उन्होंने आज योगी हुकूमत पर सेक्रेटेरिएट में बदअनवानी से मुतालिक एक खबर के जिक्र के साथ हमला किया और कहा कि अब यह साबित हो रहा है कि रियासत का सबसे बड़ा दफ्तर यानी उत्तर प्रदेश सेक्रेटेरिएट भी बदअनवानी का अड्डा बन गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, रियासत का सबसे बड़ा दफ्तर सेक्रेटेरिएट उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हुकूमत में बदअनवानी का मरकज बन गया है। मवेशी परवरी के महकमे के घपले ने हुकूमत के पूरे बदअनवान निजाम को बेनकाब कर दिया है। रियासत के एग्जीक्यूटिव मरकज के गिर्द बदअनवानी ही बदअनवानी है। क्या वज़रा और वजीर आला को इस बारे में कोई इशारा नहीं मिला? अगर ऐसा है तो हकीकत हैरान कुन है। ये उत्तर प्रदेश हुकूमत के अमली तर्ज पर सवालिया निशान है। भारत पूरे खित्ते के अमन व अमान को दाव पर लगा रहा है, शाह महमूद कुरैशी। वजीर खारिजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत अपनी हिंदुत्व पॉलिसियों के सबब पूरे खित्ते के अमन व अमान को दाव पर लगा रहा है। आलमी बिरादरी भारतीय रूबे का नोटिस है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की जेर सदारत कौमी सलामती के हवाले से आला सतही इजलास में मुआविन खुसूसी डॉक्टर मुईद यूसुफ, सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद और आला अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। पुलिस ने डीएमसी के सरबराह को गद्दारी के मुकदमे में तहकीकात में शामिल होने के लिए नोटिस भेज दिया। दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने पीर के रोज दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान को उनके खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दर्ज किए जाने वाले गद्दारी के मुकदमे की तहकीकात में शामिल होने के लिए नोटिस भिजवाया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट की हिदायत के बाद पुलिस ने जफरुल इस्लाम खान को एक नोटिस भिजवाया है और उनसे उनके मुतनाज़े सोशल मीडिया पोस्ट के सिलसिले में 2 दिन के अंदर तहकीकात में शामिल होने को कहा है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया, अदालत की हिदायत पर हमने उन्हें अगले 2 दिन में तहकीकात में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा है। फोन पर पीटीआई से बात करते हुए जफरुल इस्लाम खान ने कहा, मुझे तहकीकात में शामिल होने के लिए खुसूसी सेल से नोटिस मिला है। मुझसे तफ्तीश के सिलसिले में कुछ तफसीलात देने को कहा गया है। मैं कल उनके जंगपुरी ऑफिस में तहकीकात में शामिल होऊंगा। सुशांत सिंह की मौत की खबर सुनकर उनकी भाभी भी चल बसी।
بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی بھابھی ان کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور سشانت کی موت کی خبر سن کر وہ بھی چل بسی۔ 2 روز قبل بالی ووڈ کے نامور اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی خودکشی کی خبر نے پوری بالی ووڈ انڈسٹری کو دنگ کر دیا تھا۔ اکشے کمار، انوراگ کیشپ سمیت متعدد فنکاروں نے سشانت سنگھ کی موت پر غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا انہیں یقین نہیں آ رہا کہ سشانت سنگھ راجپوت اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ سشانت سنگھ کے گھر والے بھی اس خبر پر یقین نہیں کر پا رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سشانت سنگھ کے کزن کی اہلیہ سدھا دیوی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور سشانت سنگھ کی موت کی خبر سن کر وہ بھی اس دنیا سے چل بسی۔ ضلع کڑپا میں 17 نئے کنٹونمنٹ زون کی تشکیل، ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن۔ ضلع کڑپا میں کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نئے کیسوں کے علاقوں میں 17 نئے کنٹونمنٹ زون تشکیل دیے گئے ہیں جو اس طرح ہیں۔ کڑپا اربن علاقے میں نئے کنٹونمنٹ زون میں پہلا عالم خان پلی جو کہ 49ویں وارڈ کے تحت آتا ہے، دوسرا بھوانی نگر جو 40ویں وارڈ کے تحت آتا ہے، تیسرا وویکانندا نگر 13ویں وارڈ کے تحت، اوم شانتی نگر بھی کنٹونمنٹ زون کے تحت آتے ہیں، چوتھا سیٹلائٹ سٹی 49ویں وارڈ میں واقع سیٹلائٹ سٹی ٹاؤن شپ کے محدود، پانچواں پیدا بیستہ پلی جو کہ 32 اور 34 وارڈ کے تحت کے علاقے پیدا بیستہ پلی نخاش کنٹونمنٹ زون کے تحت آتے ہیں، چھٹا بھگت سنگھ نگر 45ویں وارڈ کنٹونمنٹ زون کے تحت ہے۔ پروڈکٹور اربن کے تحت کیے گئے نئے کنٹونمنٹ زون اس طرح ہیں: JNF روڈ 3 وارڈ کا کچھ حصہ کے سننا سترم ویدی رام نگر، JNF روڈ سائی کشیر روڈ پرکاش نگر 2ویں وارڈ کا کچھ حصہ جس میں شاستری نگر بالاجی نگر شامل ہیں، 4ویں وارڈ کا کچھ حصہ سائی کشیر روڈ کو آپریشن کالونی لکشمی رام نگر کے علاقے، 10ویں وارڈ کا کچھ حصہ جس میں گاندھی روڈ ہاسپٹل سبا ریڈی کوٹل شامل ہیں، 36ویں وارڈ کا کچھ حصہ نہرو روڈ سپر بازار ویدی کا کچھ حصہ اور وینکٹیشور پیٹا شامل ہیں۔ SVM کے کنٹونمنٹ زون اس طرح ہیں: 5ویں وارڈ کا کچھ حصہ، 6ویں وارڈ کا کچھ حصہ پولیوندلا کے 21ویں وارڈ کے پیدا کونڈپا کالونی کے علاقے، بھاگرا پورم کے چند علاقے، نگری گٹا 16ویں وارڈ کے علاقے، کملا پورم منڈل کے کوگٹم BC کالونی، پیدا چپ پلی چاپاڑو منڈل، دور کے رام سائی نگر، یرگنٹلا کے چنا دنڈلور، اوبل واری پلی کے چلم پالیم علاقے کنٹونمنٹ زون میں شامل ہیں۔ ہری کرن نے ان علاقوں کے عوام سے عہدیداروں سے تعاون کرنے اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ JC دیواکر ریڈی کی ملکیت فروخت کرنے پر ضلع اننت پور کے عوام کی 20 برسوں تک ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں۔ ہندو پورم MP گورنٹلا مادھو۔ رکن پارلیمان ہندو پورم گورنٹلا مادھو نے اننت پورم میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابقہ MP تاڑ پتری JC دیواکر ریڈی پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ دیواکر ریڈی کی املاک کو بیچ کر 20 برسوں تک ضلع اننت پور کے عوام کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے تلگو دیشم پارٹی کے قائد نارا لوکیش کی جانب سے دیواکر ریڈی کے گھر پہنچ کر ان کے بھائی کی گرفتاری پر پریس دینے پر بھی سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ایسے افراد جو جعلی طریقوں سے کمائی کرتے ہیں، حکومت کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسے افراد کی تائید کرنا بھی جرم میں شامل ہونے کے مترادف ہے۔ 154 لاریوں کو جعلی طریقے سے رجسٹر کرانے والے چور افراد کا ساتھ دینا بھی اس میں شامل ہونے کے برابر ہے۔ JC دیواکر ریڈی کے خاندان نے غلط طریقوں سے دولت کمائی اور ان کے ہاتھوں پکڑے گئے آج جیل میں بند ہیں۔ JC ٹریولز پر جملہ 24 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ گورنٹلا مادھو نے تلگو دیشم پارٹی کے صدر سابقہ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو پر بھی شدید تنقید کرتے ہوئے سازشی سیاست کو چھوڑنے کی خواہش کی۔ کڑپا پولیس کا کارنامہ 24 گھنٹوں کے اندر
चोर को गिरफ्तार करके चोरी का माल बरामद कर लिया। डीएसपी कड़पा सूर्या नारायण। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, डीएसपी कड़पा मिस्टर सूर्या नारायण ने अपने दफ्तर में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कड़पा पुलिस ने अंदरून 24 घंटे एक चोरी की वारदात को हल कर लिया और चोर को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से चुराए गए सोना और नकद को बरामद कर लिया, जो 10 लाख रुपये मालियत का है। तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि शंकर रेड्डी, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, शादी की तकरीब में शिरकत के लिए कड़पा पहुंचे। कल 15 जून दोपहर 1 बजे हैदराबाद वापस जाते वक्त उन्होंने कड़पा बिल्टअप में वाक़े विजय दुर्गा मंदिर पूजा के लिए अपनी बीवी के साथ पहुंचे। कार को लॉक करके कार के शीशे चढ़ाए गए, ताहम एक शीशा खराब होने की वजह से बंद नहीं हुआ, जिसे ऐसा ही छोड़ दिया गया। बीच की सीट पर बैग रख दिया गया, जिसमें 182 ग्राम सोने के जेवरात, 15,000 नकद रकम रखी हुई थी। कुल मालियत 10 लाख रुपये होती है। पूजा करके वापस आने पर बैग गायब थी, जिसे देखते हुए ताल्लुका पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। ताल्लुका इंस्पेक्टर एम नागब हुसैनम ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। मिस्टर सूर्या नारायण ने कहा कि पुलिस ने दिन के वक्त में कड़पा के मसरूफ इलाके बिल्टअप में चोरी के वारदात को एक चैलेंज की तरह लेकर तहकीकात का आगाज किया। डीएसपी कड़पा सूर्या नारायण ने इस मकाम का दौरा किया और इंस्पेक्टर के अलावा सब इंस्पेक्टर्स आर राघवेंद्र रेड्डी और सब इंस्पेक्टर एसकेएम हुसैन पर मुश्तमिल टीम तैयार की गई। 3 स्पेशल टीमें तश्कील दी गई। कड़पा कमांड कंट्रोल में नस्ब सीसी कैमरों को खंगाला गया, जिसमें एक शख्स को मोटरसाइकिल में आकर कार की खिड़की से बैग उड़ाते हुए देखा गया, जिसकी बुनियाद पर चोरी की शनाख्त करने का काम शुरू किया गया। चोर की वेणुगोपाल रेड्डी की हैसियत से शनाख्त की गई, जो चन्नूर का रहने वाला है। उसे गिरफ्तार करके तफ्तीश पर उसने बताया कि वो एक ड्राइवर है। 1 साल पहले कुवैत से वापस आकर 3 सोमो गाड़ियां खरीद कर किराए पर रवाना करता था। लॉकडाउन की वजह से गाड़ियां रुक गईं। फाइनेंस का बकाया अदा करने में दुश्वारी पेश आ रही थी। मजबूरन उसने ये चोरी की है। कार का शीशा खुला देखकर उसने इत्तेफाकन अंदर देखा तो बैग रखी हुई थी। उसे चुराकर फरार हो गया। ये जेवरात को फरोख्त करके अपनी 3 कारों का बकाया अदा करने की कोशिश में था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसकी तहवील से तमाम जेवरात और नकदी बरामद कर ली गई। इतने कम वक्त में चोर को पकड़कर चोरी का माल बरामद करने पर पुलिस ओहदेदारों और अमला को मुबारकबाद पेश की। నాగభూషణం తాలూకా సిఐ గారు వాళ్ళ ఎస్ఐ రాఘవేందర్ రెడ్డి తర్వాత హుసేని ప్లస్ హెడ్ కానిస్టేబుల్స్ మన విశ్వనాథ్ రెడ్డి మన ప్రసాద్ సుబ్బరాయుడు వాళ్ళ కూడా మా ఎస్పీ గారు ప్రత్యేక అభినందన చేసి ఈరోజు హెడ్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా వాళ్ళని అభినందన జరిగింది. వాళ్ళకి రివార్డు కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. ఆ రివార్డు కూడా ఇప్పుడు ఇస్తాం. తర్వాత ఇంకొక విషయం వేరేది, కడప నగర ప్రజలకు మరొక వారి విజ్ఞప్తి, కరోనా గురించి చాలా మంది కొంత అజాగ్రత్తగా ఉన్నారు. చాలా మంది సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయకుండా మాస్క్ ధరించకుండా తిరుగుతున్నారు. మన కడప నగరంలో సుమారు 10,000 సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి. సీసీ కెమెరాలలో ప్రతి నిత్యం మేము అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము. మోటార్ సైకిల్లో ఎవరైతే సీసీ కెమెరాల్లో మోటార్ సైకిల్లో ఉన్నారో మోటార్ సైకిల్లో మాస్క్ పెట్టుకోకుండా పోయిన వాళ్ళకు, అది ఎవరైనా కానీ, అది ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా కానీ, కంపల్సరీగా మేమైతే కేసులు నమోదు చేస్తున్నాం. మీకు తప్పకుండా చలాలు ఇంట్లోకి వస్తాయి. మీకు ఆన్లైన్లో మిమ్మల్ని మేము ఆపడం లేదు. ఓన్లీ సీసీ కెమెరాలు చూసి కేసులు నమోదు చేస్తున్నాం. కాబట్టి దయచేసి ఎవరైనా డ్రైవింగ్ చేసినప్పుడు వెహికల్లో పోతున్నారంటే 2 వీలర్లో పోయే వాళ్ళందరికీ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశాం. నేను ఒక్కరోజే 65 మంది కూడా సీసీ కెమెరాలో చూసి మన కేసు కూడా నమోదు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోలేదే, మమ్మల్ని చూడలేదే, వెళ్ళిపోతున్నాం అనుకుంటున్నారు. కానీ సీసీ కెమెరాల్లో చూసుకొని కేసులు నమోదు కూడా చేస్తున్నారు. కాబట్టి అందరూ దయచేసి అందరూ మాస్క్ ధరించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के लिए। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर।